Namaskar, my name is Manish Mishra. I'm a company secretary and I'm your company law expert. Today we are going to discuss what is company. For every entrepreneur, it is very much important to understand the options that he has. If he has to come up with a new business, then obviously he has certain options. Like you can go for a company model, you can go for LLP or partnership firm, or you can conduct that business in your own name as a sole proprietorship concern. But in case if you want to go for company, then why you should go for company, why not any other form of business, that you need to understand, and that is only possible if you know the basics of company. My object is to brief you the positives and negatives of a company model, and let's see if you are able to understand it. So I'm going to cover 5 small topics, or you can say subtopics in my presentation. One is what is company. I'm going to discuss the meaning of the company, and then what are the selling features of company. Further, what are the types of companies that we have. We will further dig it more, that what is difference between the various types of companies, and the last is how you can incorporate a company, how you should register a company if you want to actually go for a company. So if you go by the legal meaning, the law says a company is particular organization which is incorporated as per the provisions of Companies Act 2013 or any other previous company law. So what is previous company law? Before Companies Act 2013 came into the play, we had Companies Act 1956, and before that also आपको मालूम है अंग्रेज़ों का ज़माना हुआ करता था और अंग्रेज़ लोग के टाइम से जो है ये कंपनी लॉ चला आ रहा है. सो उससे पहले और भी पुराने लॉज हैं. अगर हम बात करें तो आज भी आपको पता चलेगा, you can notice that there are certain companies which are older than 100 years. So yes, those all are previous incorporated under previous company law. But if you go by the dictionary meaning, or if you just go on Google and you type company, it shows that it is a business organization selling goods or service. Again, if I go by my interpretation of law, or in common language, what is company? Company is basically an association of both natural and artificial person. It is a registered association which is having its own legal entity, its own identity. It's different from its members. It has perpetual succession. It has its shares are transferable, and it carries limited liability. So now we are going to discuss the features of a company. Company is a body corporate. It is a separate legal entity. Separate as in it is separate from its members. Next, it has perpetual succession. Like the members may come and go, then also the company will continue to exist. Company has limited liability. All the members, they have liability up to their shareholding only. Company is capable of owning property in its own name because it is a corporate citizen. The shares of the companies are transferable. You can, like if I'm holder of XYZ private limited, and if I don't want to continue as the shareholder, I can sell it to someone else. Company can sue and can be sued in its own name if suppose that company has violated any of the provisions of the law, or it has done something which is not correct for third party, and if third party wants to get compensation of wrongdoing of company, it can go to court and it can sue the company in its own name. Company can also, if company feels that it has certain issues with any third party, then it can also go to courts and it can file a suit against that person in its own name. Also, company can enter into contracts in the name of company, and it is similarly it is as binding as a contract entered between two individuals. And last but not the least, that company cannot simply be closed. If you have to close the company, then you have to follow a due process of law. You can go for strike off or you can go for winding up. Okay. Now, as I have already discussed about the features of the company, there are certain types of companies that we need to understand. Like
अगर हम बेसिकली बात करें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ते हो या आप कभी उसको समझना चाहोगे, तो कंपनी लॉ कहता है कि भाई सिर्फ दो ही टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी विच इज बेसिकली प्राइवेटली हेल्ड, लाइक इट कैन हैव ओनली मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम अप टू 200 शेयर होल्डर्स। तो 200 से ज़्यादा अगर लोग नहीं है तो आप कह सकते हो कि प्राइवेटली हेल्ड है। बट पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, स्पेशली जितने भी आप देखते हो, अगर शेयर ट्रेडिंग करते हो आप, कभी आप स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करते हो, तो आप देखोगे कि जितनी भी कंपनीज हैं, listed companies हैं, they all are public companies. Public companies because public's money is involved in it. Any individual can hold the shares of the company if it is, if it is selling it. आप हो सकता हो कि मैं भी जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का जो है 1% का या 0.5% का शेयर होल्डर हूँ, और दैट वे प्राइवेट कंपनी इज प्राइवेटली हेल्ड एंड पब्लिक कंपनी मीन्स जहाँ पे पब्लिक कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सिर्फ शेयर होल्डिंग के अलावा, तो आप देखोगे कि जनरली पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें जो लॉ के कंप्लायंस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट कंपनी को थोड़ा सा सरकार जो है एग्जेम्प्ट करती है, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ कंप्लायंस या डिस्क्लोजर्स वो कम होते हैं। और इसके अलावा पहले अगर मैं बात करूं आज से 4 साल 5 साल पहले, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी अलग होती थी। पहले होता था कि अगर इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ प्राइवेट कंपनी देन आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी में वहीं पे मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए थी। हालांकि अभी फिलहाल जो है एज ऑन डेट वो चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया है। आज के डेट में आपको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनानी है तो वो 5,000 से भी आप बना सकते हो, उसका इनिशियल जो कैपिटल है वो 5,000 भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये होता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, विच मीन्स कि हम ऐसे ही शेयर किसी को जो है ऑफर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऑफर द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू पब्लिक, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। आपको अगर जो है इन्वेस्टमेंट लाना है तो प्राइवेट कंपनी के केस में भाई मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दूंगा या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को ही मैं ऑफर कर सकता हूँ या कॉर्पोरेट्स को ऑफर कर सकता हूँ। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आई कैन गो फॉर, आप सुनते होंगे एक टर्म आईपीओ आया है, ठीक है। तो व्हाट इज आईपीओ या एफपीओ की हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है फलानी कंपनी जो है 2 करोड़ के शेयर इशू कर रही है, तो उसका मतलब ये होती है कि वो जो है जनरली पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि भाई कोई अगर शेयर्स हमारी कंपनी के सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फ्रॉम लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगेन कंपनी जो है 2 टाइप की होती है। मैंने 2 मेंशन किया, बट एक तीसरा टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। पहला टाइप है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो आप जनरली आप देखोगे जनरली जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। हम हमेशा, अभी मैं पहले भी बात कर रहा था कि आप जो है पब्लिक कंपनी कैन ऑफर शेयर्स टू पब्लिक। सिमिलरली व्हाट इज शेयर? शेयर मीन्स if for conducting any particular business you need to bring certain money into it, and पैसा अगर आप ला रहे हो किसी बिजनेस में तो वो किस फॉर्म में ला रहे हो? आप जो है उसके बदले शेयर्स इशू करते हो, लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं, वो पैसा आता है एंड देन वो पैसा जो है आप फर्दर बिजनेस में यूज करते हो, ठीक है। तो अगर जो है आप, एक मॉडल ये हो गया कि भाई हम जो कंपनी बना रहे हैं इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, विच मीन्स कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग होगी, जो इसमें मेंबर बनेगा वो पैसा लाएगा, जितने का जो है वो शेयर सब्सक्राइब करेगा उतने की हमारी कैपिटल उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में कोई हाँ एक चीज़ और, लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि फिर मेरी लायबिलिटी क्या होती है, जितने के मैंने शेयर सब्सक्राइब करे हैं। मैंने पहले भी आपको फीचर्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि जितने के मैंने शेयर होल्डिंग है मेरी, उतनी ही मेरी लायबिलिटी है। बट अगर मैं दूसरा टाइप की बात करूँ लिमिटेड बाय गारंटी, तो लिमिटेड बाय गारंटी में इट इज पॉसिबल लाइक इफ मी एंड मिस्टर एक्स, हम वी वांट टू गो फॉर अ कंपनी, वी वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड मिस्टर एक्स इज रिच and I don't have much fund to invest in this company, but I have idea. I am the person who is going to carry on the business or execute all the deals that we have in our mind. आपको business technically अगर मेरे को ही चलाना है तो
सपोज दैट मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मिस्टर एक्स ने जो है 1 करोड़ रुपए लगाया। हमने कंपनी जब बनाई तो हम लोग का जो कैपिटल था, आप कह सकते हो जो इनिशियली जो फंड कंट्रीब्यूट हुआ, इट वाज 1 करोड़ 1 लाख। बट गारंटी जो जो नेक्स्ट होता है कि लाइबिलिटी फिर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स नहीं है, हमने शेयर्स नहीं ऑफर किए। उन्होंने 1 करोड़ रुपए लगाए तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो, बट हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, कल को अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, कल को कोई प्रॉब्लम होगी, भले आज मैं जो है 1 ही लाख रुपए अभी लगा रहा हूँ कंपनी को चलाने के लिए, बट मैं ये अंडरटेक करता हूँ दैट इफ एनी लाइबिलिटी अराइजेस दैट आई विल बी आई विल हैव ऑब्लिगेशन टू पे अप टू 50 lakhs। उन्होंने भी बोला भाई ठीक है, कल को अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है कंपनी के नाम पे तो मैं भी 50 लाख रुपए तक ही कंट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिस फंड से आप कंपनी चला रहे हो वो अलग हो जाता है, और एक्चुअली जहाँ पे लाइबिलिटी की बात आ रही है वहाँ पे वो आपके गारंटी से गवर्न होगी। जितने की मैं गारंटी ले रहा हूँ, कल को अगर कोई मैटर फंसेगा तो मैंने जितनी गारंटी ली है मैं उतना ही दे पाऊंगा। हाँ, 50 लाख की गारंटी है या 50,000 रुपए की गारंटी है, अगर 50,000 की है तो फिर मैं 50,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा, जो मैंने आपको बताया शेयर होल्डिंग के केस में। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर मेरे 10,000 रुपए के शेयर हैं तो 10,000 रुपए तक ही मेरे डूबेंगे, उसके ऊपर जो है 1 रुपए भी आप मुझसे नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो बहुत सिंपल होता है, आप सुनते हो ना, ये फॉरेन कंपनी है या ये एक एमएनसी हमारे यहाँ पे आई है। व्हाट इज एमएनसी? मल्टीनेशनल कंपनी। सो अगेन नेक्स्ट इज from the point of view of place of business. So if any company is incorporated in India as per Companies Act 2013, then it is obviously an Indian company. But if any company which is incorporated outside India, कोई बाहर देश में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है जो अब आके जो है इंडिया में काम करना चाहती है, it wants to have a place of business in India also, then that company has to register itself as foreign company as per the provisions of Companies Act 2013. बाहर से जो कंपनी आएगी उसको अपने आप को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एंड देन वो कंपनी, क्योंकि वो टेक्निकली वो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया ही है, यहाँ पे वो सिर्फ बिजनेस करने आई है, तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। जितने भी आप देखेंगे जितने भी एमएनसीज हमारे यहाँ इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, दे ऑल आर फॉरेन कंपनीज। नेक्स्ट अगर मैं टाइप की बात करूं तो ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि अगर ओनरशिप एज इन शेयर होल्डिंग या स्टेक की अगर हम बात करें तो कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी हो सकती है। वो जैसे सबसे पहला एग्जांपल है व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम BHEL की बात करें या मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं, या इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको आप कहते हो कि अच्छा ये तो सरकारी कंपनी है। HMT की अगर हम बात करें तो क्या होती है सरकारी कंपनी? सरकारी कंपनी मतलब जिसकी शेयर होल्डिंग में 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का हो। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। सो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन और along with the state government or along with the local authorities, if they hold the shares of value 51% or more, then that company shall be treated as government company. Next, what is holding company? So अभी आप भूल जाइए, गवर्नमेंट कंपनी तो वो है जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बट आप भूल जाइए कि गवर्नमेंट कंपनी में आप दो प्राइवेट कंपनीज को लेते हैं। एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है ABC। XYZ जो है ABC के 52% शेयर्स होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे जो ABC है इट इज सब्सिडरी ऑफ XYZ। XYZ इज होल्डिंग कंपनी। तो जो दूसरा टाइप है वो होल्डिंग और सब्सिडरी का एक रिलेशनशिप होता है। कोई भी कंपनी अगर 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स दूसरे कंपनी के अगर जो है होल्ड कर रही है, तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जिसके होल्ड किए जा रहे हैं दैट इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग। एक और नया टाइप Companies Act 2013 brought one more concept and that concept is called associate company। इससे पहले नहीं होता था। अगर मैं पुराने कंपनी लॉ की बात करूं तो वहाँ पे दो ही टाइप होती थी अगर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो होल्डिंग कंपनी या तो सब्सिडरी कंपनी। बट एक नया टाइप आया दैट इज एसोसिएट कंपनी। व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? अब मान लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, मैंने बोला XYZ और ABC का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। XYZ ABC के 52% शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो ये सब्सिडरी हो गई, ये आपकी होल्डिंग हो गई। मान लीजिए एक नेक्स्ट कंपनी है PQR। XYZ PQR के 22% शेयर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे PQR इज एसोसिएट कंपनी ऑफ XYZ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट समझिए,
कि अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की 20% या उससे ज़्यादा के अगर शेयर्स या स्टेक होल्ड कर रही है, तो जिस कंपनी के होल्ड किए जा रहे हैं दैट कंपनी बिकम्स एसोसिएट ऑफ XYZ। नेक्स्ट जो एक अलग टाइप मैंने इसमें मेंशन किया है ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जॉइंट वेंचर। आज के डेट में आप देख रहे हो एक टर्म आप सुनते हो SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। तो आज के डेट में क्या होता है, अगर जहाँ पे कोई भी दो बॉडी कॉर्पोरेटर, चाहे वो LLP हो, कंपनी हो, या दो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ग्रीन गैस लिमिटेड है फॉर एग्जांपल। ये दो सरकारी कंपनियां आके उन्होंने एक तीसरी एक कंपनी बनाई है, ठीक है, जहाँ पे नई कंपनी बनाई जिसमें शेयर होल्डिंग दो अलग अलग कंपनीज का है, ठीक है। तो इस टाइप के वेंचर को हम, या जॉइंट वेंचर को जो है आज के डेट में आप देखेंगे एक इस टाइप की भी कंपनी होती है। होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर्स भी होता है, ठीक। नेक्स्ट जो टाइप में बात करूंगा लास्ट, अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में आऊँगा तो वो आते हैं प्रोड्यूसर एक्टिविटी वाइज। एक्टिविटी वाइज मतलब कि आपका बिजनेस क्या है, क्या आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे अच्छा ये किस टाइप की कंपनी है। सो वन एग्जांपल इज प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, विच इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स ओनली, बट इट हैज प्रॉफिट मोटिव। सिमिलरली यहाँ पे अगर सेम फॉर्म, अगर आप सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस आप कोऑपरेटिव में ना रन करके अगर आप कंपनी मॉडल में रन करना चाहते हो, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम पुराने कंपनी लॉ में सेक्शन 25 कंपनी भी कहते हैं। व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी इज कंपनी basically which has objects as per the list, or you can say as per section 8 of the Companies Act 2013। जनरली इसमें आपके NGOs फॉल करते हैं। आप जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देख रहे हो, अगर वो जो है ट्रस्ट मॉडल में नहीं जाते हैं या सोसाइटी के फॉर्म में नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कंपनी के फॉर्म में ये NGO रन करूं, देन ऑब्वियसली दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सेक्शन 8 कंपनी। और लास्ट इसमें मैंने जो लिखा है निधि कंपनी लिखा है, बट मैं आपको एक और टाइप बताऊंगा। निधि कंपनी होता है बेसिकली जहाँ पे आप अपने मेंबर्स से ही जो है डिपॉजिट्स लेते हो, और अगर आप चाहो तो उनको लोन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स से पैसा लेना या उनको देना, अगर इस टाइप का आपको अगर बिजनेस करना है तो वन ऑप्शन इज निधि कंपनी, जो आपको एज पर निधि रूल्स आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है ऑलरेडी कंपनी लॉ में, वो चीज़ मेंशन है। अदर्स की जो मैं बात करूं, मैं अभी आगे भी स्लाइड में आप देखोगे, फॉर एग्जांपल हमने अभी ऑलरेडी बेसिक टाइप में डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होती है। देन मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस या ओरिजिन की अगर हम बात करें तो कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर हो रही है तो वो इंडियन कंपनी है, बट अगर वो बाहर की रजिस्टर्ड कंपनी है और इंडिया में आके आज के डेट में बिजनेस करना चाहती है तो वो फॉरेन कंपनी है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि ओनरशिप के बेसिस पे 51% या उससे ज़्यादा अगर शेयर होल्ड कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या साथ में हो किसी कंपनी के, तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। आपको होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट बताया, जॉइंट वेंचर बताया। बट अगर मैं एक्टिविटी वाइज बात करूँ तो निधि कंपनी मतलब ऑलरेडी जो मेंबर से डिपॉजिट ले और उनको मनी लैंड करे। प्रोड्यूसर कंपनी जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस को अगर आप कंपनी मॉडल में कर रहे हो तो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ योर मेंबर्स। NGO अगर आप चलाना चाहते हो इन कॉर्पोरेट फॉर्म या कंपनी मॉडल में, देन सेक्शन 8 कंपनी होती है। अदर्स में मैं जो कवर करना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप देखते हो कि बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, आज के डेट में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, CICs होती हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो हम उनको जो है क्लासीफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अगर मैं UPPCL की बात करूं, इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आज के डेट में अपने हमारे यहाँ लखनऊ की ये कंपनी है सहारा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, तो अगेन इट इज़ इंश्योरेंस कंपनी। या LIC की बात करूं, इट इज़ अगेन इट इज़ इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं जो है बात करूं HDFC लिमिटेड की, इट इज़ बैंकिंग कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज ऑल्सो यू कैन क्लासीफाई द कंपनीज जी।
सो जो लास्ट टॉपिक जो मेरे प्रेजेंटेशन का है वो है प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन? अगर आप जो है आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को कंपनी मॉडल में ही बिजनेस करना है, क्यों करना है? बिकॉज कंपनी ऑफर्स लिमिटेड लायबिलिटी, बिकॉज कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो इन पॉजिटिव्स को अगर आप कंसीडर करके आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को कंपनी फॉर्म में ही बिजनेस करना है, तो आपको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप नेम अप्लाई करते हैं। नेम, किसी भी कंपनी का नेम अगर आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, तो उसमें देखेंगे फर्स्ट नेम जो आप चाहते हो, XYZ कोई भी नाम, मैं मनीष मिश्रा मेरा नाम है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम मनीष मिश्रा करके ही स्टार्ट हो, तो ठीक है, आप रिलायंस हो सकता है, मनीष मिश्रा हो सकता है, XYZ हो सकता है। देन सेकंड आप देखेंगे रिलायंस कम्युनिकेशंस में कम्युनिकेशंस विच रिफ्लेक्ट्स द बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड ऑन बाय द कंपनी। एंड लास्ट में लिमिटेड, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आप बहुत यूजुअली आप देखते होंगे। तो लिमिटेड का मतलब इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले आप नेम अप्लाई करेंगे MCA पोर्टल पे। नेम, जब आपका नेम अप्लाई करते समय आपको उसके ऑब्जेक्ट्स भी कोड करने हैं कि ये कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगी। जब उसको एक बार नेम अप्रूवल आ जाता है, जनरली वो 20 डेज के लिए वैलिड होता है, तो विद इन 20 डेज आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, जिस फॉर्म का नाम है स्पाइस प्लस। उस एप्लीकेशन में साथ ही साथ आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, INC9 होता है सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, जो इनिशियली शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है। ठीक है, तो INC9 आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, तो उसमें भी डिजिटल साइनिंग होती है। देन एक फॉर्म आपको फाइल, साथ ही साथ इन सब फॉर्म्स के स्पाइस प्लस, MOA, OA, एंड देन एक और फॉर्म फाइल होता है साथ में अटैच, एक साथ लिंक्ड फॉर्म फाइल होते हैं। एजाइल प्रो जो फॉर्म है वो आपको ऑफर करता है कि आप पैन, टैन, उसके अलावा PF ESI रजिस्ट्रेशन आपका इसी के साथ, जैसे ही कंपनी बनेगी आपका पैन, टैन, PF ESI ये सब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसी के साथ ही साथ आप GST रजिस्ट्रेशन भी एजाइल प्रो के थ्रू कर सकते हो। एंड देन ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे लिंक फॉर्म फाइल होंगे, इनके साथ सर्टेन अटैचमेंट्स होते हैं जो कि हम एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन डिजिटल साइनिंग होती है। आज के डेट में जो है क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, आपको जो है हर एक इंडिविजुअल जो सब्सक्राइबर है या जो उसका डायरेक्टर बन रहा है उसकी साइनिंग होगी यहाँ पे डिजिटली। फिर हम ये फॉर्म MCA में सबमिट करेंगे। अगर उस फॉर्म में कोई भी कमी नहीं होती है, इट इज़ एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रूल्स, देन रजिस्ट्रार आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है, विच मीन्स कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है और अब आप बिजनेस कर सकते हैं आगे। थैंक यू, इतना ही था। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप डाउन योर क्वेरी टू माय ईमेल ID। धन्यवाद।